یہ ZBC کی اردو سروس ہے. پیش خدمت ہے حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین. یہ پروگرام ہر روز رات 8 بجے ہمارے YouTube چینل پر پیش کیا جاتا ہے. آج جمعہ ہے اور دسمبر کی 5 تاریخ. ZBC سیربین سے میں ہوں جاوید چودھری. روسی صدر کا کہنا ہے کہ یوکرین کی فوجیں واپس لوٹ جائیں ورنہ روس ڈونباس کو زبردستی حاصل کر لے گا. We will finish it when we achieve the goals set at the beginning of the special military operation, when we free these territories. That's all. پاکستان میں فیلڈ مارشل عاصم منیر پاکستان کے پہلے چیف آف ڈیفنس فورسز مقرر. ایئر چیف کی مدت ملازمت میں بھی 2 سال کی توسیع. تجزیہ کار بولا. اب فیلڈ مارشل عاصم منیر کا ٹینیور ہے 4 دسمبر 2025 سے 3 دسمبر 2030 تک. آپ ایک بات تو یہ سمجھیں کہ اب فیلڈ مارشل عاصم منیر اس ملک کے آرمی چیف اور CDF ہیں 3 دسمبر 2030 تک. حماس مخالف فلسطینی ملیشیا کے ایک نمایاں رہنما یاسر ابو الشباب قتل. افغانستان میں 80,000 افراد کی موجودگی میں سزائے موت پر عمل درآمد کے بعد عینی شاہدین کے تاثرات. مثلا ظالم یو کس قانون اسلامی قانون پر عمل کیږي نو دغه ډېر ښه ثابتېدلی شي د ټولنه یو مثبت لوري ته تللی شي. پاکستان میں بے گناہی ثابت کرنے کے لیے گرم لوہا پکڑوانے کی رسم پر جرگہ ممبران کے خلاف مقدمہ. جانیے آصاف کی فرسودہ رسم کیا ہے. یہ بھی جانیے کہ بھارت میں تیندوؤں کے حملوں سے بچنے کے لیے کسانوں نے کیا طریقہ اپنایا. انڈیا کے ایک گاؤں میں مزدور تیندوؤں کے حملے سے بچنے کے لیے نوکیلے پٹے پہن رہے ہیں. تیندوا کسی بھی وقت ہم پر حملہ کر سکتا ہے. اور یہ بھی کہ کراچی کے لیاری نے گینگ وار کے سائے سے امن کی جانب کیسے سفر کیا. انہی گلیوں سے لڑتے مرتے ہوئے ہم جوان آؤ بنے ہم آواز کے لیاری. میرا نام سندھی سرائی کی بلوچ یا پٹھان, سب کے اپنے ہنر سب کے اپنی پہچان. اس کے علاوہ دیگر خبریں بھی آج کے سیربین میں شامل رہیں گی, مگر ہمیشہ کی طرح پہلے اہم عالمی خبروں کا خلاصہ. روس کے صدر ولادیمیر پیوتن نے ایک بار پھر خبردار کیا ہے کہ یوکرینی فوجیوں کو یوکرین کے مشرقی ڈونباس علاقے سے انخلا کرنا ہوگا ورنہ روس اسے قبضے میں لے لے گا. انہوں نے یوکرین میں جنگ ختم کرنے کے طریقے پر کسی بھی سمجھوتے کو مسترد کر دیا ہے. روسی صدر نے انڈیا ٹوڈے کو بتایا کہ یا تو ہم ان علاقوں کو زبردستی آزاد کرائیں گے یا یوکرینی فوج ان علاقوں کو چھوڑ دیں گے. ماسکو ڈونباس کے تقریباً 85% حصے پر قابض ہے. دوسری جانب یوکرینی صدر ولادیمیر زیلنسکی نے علاقہ چھوڑنے کو مسترد کر دیا ہے. پیوتن کے یہ بیانات اس کے بعد آئے ہیں جب صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ ان کے مذاکرات کار جو امریکی امن منصوبے پر بات کر رہے تھے کا خیال ہے کہ روس کے رہنما جنگ ختم کرنا چاہتے ہیں. ٹرمپ کے ایلچی اسٹیو وٹکوف جو ماسکو میں موجود تھے فلوریڈا میں یوکرین کی ٹیم سے ملاقات کرنے والے ہیں. ٹرمپ نے کہا کہ منگل کے روز کرملن میں ہونے والی بات چیت معقول حد تک اچھی تھی اور مزید کہا کہ ابھی یہ کہنا قبل از وقت ہے کہ کیا ہوگا کیونکہ تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے. امریکی امن منصوبے کے اصل ورژن میں ڈونباس کے وہ علاقے جو اب بھی یوکرینی کنٹرول میں تھے عملی طور پر پیوتن کے کنٹرول میں دینے کی تجویز دی گئی تھی, لیکن وٹکوف ٹیم نے ماسکو میں اس کا ترمیم شدہ ورژن پیش کیا. انڈیا ٹوڈے کے اپنے انٹرویو میں جو دہلی کے سرکاری دورے سے قبل تھا, پیوتن نے کہا کہ انہوں نے وٹکوف اور ٹرمپ کے داماد جیرڈ کشنر سے بات چیت سے پہلے نیا ورژن نہیں دیکھا تھا. 8 years signed the Minsk agreements, hoping that they could be resolved through peaceful means. But Western leaders openly admitted later that they never intended to honor those agreements, signing them merely to allow Ukraine to arm itself and continue fighting against us. After 8 years of relentless violence against our citizens of Donbass, something the West hasn't uttered a word about, we were forced to recognize these republics first, and secondly, provide support. Our special military operation is in the start of a war.
انہوں نے مزید کہا کہ اسی لیے ہمیں ہر نقطے پر غور کرنا پڑا اور اسی لیے اتنا وقت بھی لگا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ماسکو امریکی منصوبے کے کچھ حصوں سے متفق نہیں ہے۔ صدر پیوتن کا کہنا تھا کہ کبھی کبھار ہم نے کہا کہ ہاں ہم اس پر بات کر سکتے ہیں لیکن اس پر ہم متفق نہیں ہو سکتے۔ انہوں نے ان حل طلب مسائل کی وضاحت نہیں کی، تاہم کم از کم 2 اہم متنازع نکات باقی ہیں جو روسی افواج کے قبضے میں یوکرینی علاقے کی تقدیر اور یوکرین کے لیے سیکیورٹی ضمانت ہیں۔ یوکرین نے بار بار روس پر جنگ بندی کے معاہدے روکنے کا الزام لگایا ہے اور کہا ہے کہ ماسکو مزید یوکرینی علاقوں پر قبضہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ کرملن مذاکرات پر تبصرہ کرتے ہوئے یوکرینی وزیر خارجہ اندری نے کہا کہ پیوتن دنیا کا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ یوکرین طویل عرصے سے کسی بھی معاہدے میں یوکرین کے لیے ٹھوس سیکیورٹی ضمانتوں پر زور دیتا رہا ہے۔ ایک جانب جہاں انڈیا کی حکومت پیوتن کے دورے کے دوران اہم معاہدوں کو حتمی شکل دینے کا ارادہ رکھتی ہے، وہیں دوسری جانب انڈیا میں اپوزیشن جماعت کانگریس کے رہنما راہل گاندھی نے الزام لگایا ہے کہ حکومت اپوزیشن کو روسی وفد سے ملاقات نہیں کرنے دے رہی۔ انہوں نے کہا کہ عام طور پر یہ روایت رہی ہے کہ جب بھی کوئی غیر ملکی لیڈر انڈیا آتا ہے تو وہ اپوزیشن لیڈر سے ملتا ہے، لیکن موجودہ حکومت انہیں مشورہ دیتی ہے کہ وہ اپوزیشن لیڈر سے نہ ملیں۔ پاکستان کے صدر آصف علی زرداری نے فیلڈ مارشل عاصم منیر کی بطور چیف آف آرمی سٹاف اور چیف آف ڈیفنس فورسز تعیناتی کی منظوری دے دی ہے۔ جمعرات کی شام وزیر اعظم شہباز شریف نے فیلڈ مارشل عاصم منیر کی تعیناتی کے متعلق سمری ایوان صدر بھجوائی تھی۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر چیف آف آرمی سٹاف کے ساتھ ساتھ ملک کے پہلے چیف آف ڈیفنس فورسز بھی مقرر ہو گئے ہیں۔ ان دونوں عہدوں کی مدت 5 سال ہوگی۔ اس کے علاوہ صدر زرداری نے وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے چیف آف ایئر سٹاف ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کی مدت ملازمت میں 2 سال کی توسیع کی سمری بھی منظور کر لی ہے۔ اس توسیع کا اطلاق ان کی موجودہ 5 سالہ مدت ملازمت کے مارچ 2026 میں مکمل ہونے پر ہوگا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں اندر کی خبر رکھنے والے صحافی مزمل سہر وردی۔ ہم ان سے یہ جانتے ہیں کہ اب نوٹیفیکیشن تو ہو گیا، آرمی چیف کا عہدہ بھی برقرار ہے اور چیف ڈیفنس فورسز کا عہدہ بھی انہیں جنرل عاصم منیر کو دے دیا گیا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب جنرل عاصم منیر کب تک آرمی چیف یا چیف آف ڈیفنس فورسز رہیں گے؟ اب فیلڈ مارشل عاصم منیر کا ٹینیور ہے 4 دسمبر 2025 سے 3 دسمبر 2030 تک۔ تو آپ ایک بات تو یہ سمجھیں کہ اب فیلڈ مارشل عاصم منیر اس ملک کے آرمی چیف اور سی ڈی ایف ہیں 3 دسمبر 2030 تک۔ اس کا مطلب ہے کہ 2029 کے الیکشن بھی فیلڈ مارشل عاصم منیر کے ہوتے ہوئے ہوں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگلے الیکشن بھی فیلڈ مارشل کرائیں گے، لہذا اگر ان کو 2030 تک یہ ٹینیور دیا گیا ہے اور قانون کے مطابق ان کو ایک اور ایکسٹینشن بھی مل سکتی ہے تو پھر وہ 2035 تک ہے۔ جو مجھے آج کی ساری خبر سے نظر آ رہا ہے کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے اپنا ٹینیور 3 دسمبر 2035 تک سیکیور کر لیا ہے۔ 29 کا الیکشن کرا کے وہ اپنی مرضی کی حکومت لے کر آئیں گے، وہ ان کو ایک اور ایکسٹینشن دے گی جو 2035 تک ہوگی۔ تو اس کا مطلب ہے فیلڈ مارشل عاصم منیر ابھی 3 دسمبر 2030 تک اس ملک کے آرمی چیف اور چیف آف ڈیفنس فورس ہیں، اور پھر ایک 5 سال کی وہ ایکسٹینشن اور لے سکتے ہیں جو 2035 تک ہوگی، کیونکہ یہ اب ان کی ایک فریش اپوائنٹمنٹ۔ مزمل سہر وردی، آپ کا بے حد شکریہ۔ غزہ میں حماس کے مخالف فلسطینی ملیشیا کے ایک نمایاں رہنما کو قتل کر دیا گیا ہے۔ یاسر ابو الشباب نے نام نہاد پاپولر فورسز گروپ کی سربراہی کی تھی، جس کے درجنوں جنگجو ہیں اور یہ جنوبی شہر رفح کے قریب اسرائیلی زیر کنٹرول علاقوں میں سرگرم ہے۔ پاپولر فورسز نے ایک بیان میں کہا کہ ابو الشباب کو ابو سینما خاندان کے افراد کے درمیان تنازع حل کرنے کی کوشش کے دوران گولی ماری گئی ہے۔ حماس نے ان خبروں کو گمراہ کن قرار دیا کہ انہیں حماس نے قتل کیا، جس نے ان پر اسرائیل کے ساتھ تعاون کا الزام لگایا تھا۔ ابو شباب کے بدو قبیلے تارابین کے ایک پہلے بیان میں کہا گیا تھا کہ انہیں مزاحمت کے ہاتھوں قتل کیا گیا اور ان پر فلسطینی عوام سے غداری کا الزام لگایا گیا ہے۔ دیگر ذرائع نے کہا کہ ان کی موت اندرونی
अंदरूनी ताकत की कशमकश का नतीजा थी। हमास के एक बयान में कहा गया है कि अबू शबाब के साथ जो अंजाम हुआ वो सब उनकी नागुज़ीर तकदीर है, जो अपने लोगों और वतन से गद्दारी करते हैं और काबज़ इसराइल के हथियार बनने पर राज़ी हैं। ताहम उसने इनके कत्ल में मुलव्वस होने का दावा नहीं किया। इसराइली आर्मी रेडियो ने सिक्योरिटी ज़राए के हवाले से बताया कि अबू शबाब जनूबी इसराइली शहर बैरुल सबा के सोरोका हस्पताल मुंतकिल होने के बाद ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए हलाक हुए हैं, लेकिन अस्पताल ने उनकी मौत वहाँ होने से इनकार किया है। पॉपुलर फोर्सेस के बयान में वादा किया गया कि वो अबू अल शबाब के रास्ते पर चलते रहेंगे जब तक गज़ा की सरजमीन से आखिरी दहशतगर्द ख़त्म ना हो जाए और हमारे अवाम के लिए रोशन और महफूज मुस्तकबिल तामीर ना हो जाए, जो अमन पर यकीन रखते हैं। अफगानिस्तान के सूबा खोस्त में मंगल के रोज़ एक बड़े स्पोर्ट्स स्टेडियम में मुबैना कातिल मंगल खान को सरेआम सजाए मौत दी गई थी, जिसे देखने के लिए तालिबान हुकाम के मुताबिक 80,000 से ज़्यादा अफराद जमा हुए थे। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक स्टेडियम में शदीद हुजूम था। सूरत हाल अफरा तफरी का शिकार रही और सज़ा का मंजर इंतहाई खौफनाक था। सज़ा से कबल हुकाम ने मकतूल के ख़ानदान को मुआफ़ी पर आमादा करने की कोशिश की, मगर अहले खाना ने इनकार कर दिया। बाद अज़ा मुजरिम को कंबल पर लिटाकर उसके हाथ बांधे गए और मकतूल के खानदान के एक नौजवान ने फायरिंग करके उसे हलाक कर दिया। तालिबान हुकाम के मुताबिक मुजरिम कई कत्ल मुकदमात में मतलूब था और ये फैसला अदालती कार्रवाई और सुप्रीम लीडर की मंजूरी के बाद नाफिज किया गया। ऐनी शाहिद के मुताबिक एहलकारों ने मैदान में प्लास्टिक बिछाया और उस पर कंबल डालकर उस शख्स को वहां लिटा दिया गया। मकतूल के खानदान का एक फर्द आगे बढ़ा, जिसे पुलिस के एक एहलकार ने बंदूक थमा दी। इसके बाद मैंने 4 गोलियां चलने की आवाज़ें सुनी, लेकिन मेरे साथ खड़े शख्स ने कहा कि उसने 7 गोलियां चलने की आवाज़ें सुनी हैं। गोलियां उस शख्स के सीने पर मारी गई थीं। ऐनी शाहिद, जो अपना नाम जाहिर नहीं करना चाहते, ने बताया कि ये मंजर खौफनाक और चौंका देने वाला था और अब वो इस बात पर पेशेमान है कि वो वहाँ ये सब देखने के लिए क्यों गए। ये सब देखने के बाद से मैं कुछ खा पी नहीं सका हूँ। आज भी मेरा जहन परेशान है। अगर ऐसा दोबारा हुआ तो मेरा ख्याल है कि मुझ समेत बहुत से लोग दोबारा ऐसी तकरीब देखने नहीं चाहेंगे। इंसानी हुकूक के कारकुनों और हामियों का कहना है कि साबका हुकूमत के खात्मे के बाद तालिबान हुकूमत दोबारा अवामी तौर पर कोड़े लगाने, हाथ काटने और फांसियाँ देने जैसी सजाएं दे रही है और वो इसे शरीयत के निफाज के तौर पर पेश कर रही है। 1990 की दहाई के आखिर में तालिबान के साबका दौरे हुकूमत में अवामी फांसियाँ और संसार करने जैसी सजाएं उनके इक़्तिदार की नुमाया खसूसियात में शामिल थी। तालिबान हुकूमत का कहना है कि क़सास की सज़ा इस्लामी कानून की बुनियाद पर दी जाती है और वो इसके निफाज को अफ़गानिस्तान में संगीन जराइम बाशमूल कत्ल के वाक़यात को रोकने के लिए ज़रूरी समझते हैं। पाकिस्तान के इलाके डेरा गाजी खान की तहसील तौंसा शरीफ में गैर कानूनी जिरगे की जानिब से एक शख्स को बेगुनाही साबित करने के लिए गर्म लोहा पकड़वाने की सज़ा सुनाए जाने पर इंतज़ामिया ने तमाम जिरगा मेंबरान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। मुकामी रिवायत आसॉफ के तहत इल्ज़ाम का सामना करने वाले शख्स शेर गुल को 11 कदम तक गर्म लोहा पकड़ाया गया, जिससे उसके हाथ झुलस गए और बाद अज़ां उस पर 2 लाख रुपए जुर्माना भी आयद किया गया। FIR के मुताबिक इस वाक़े में कबायली अमायदीन के साथ एक डॉक्टर को भी नामजद किया गया है। हुकाम का कहना है कि ये रस्म सदियों पुरानी ज़रूर है, मगर कानून के मुकम्मल खिलाफ है और ऐसे वाक़यात पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। मुतासरा शख्स की वालदा ने भी अगवा और धमकियों की शिकायत दर्ज करवाई है, जबकि इंतज़ामिया ने मुल्ज़मान की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई तेज़ कर दी है। कबायली रहनुमाओं के मुताबिक इस इलाके में ऐसी फरसुदा रसूमात ख़त्म होती जा रही हैं, ताहम हालिया वाक़े ने एक बार फिर इन रिवायात के ख़तरनाक असरात को नुमाया कर दिया है। उनका कहना था कि आस आफ से गुजरने वाला शख्स अगर ज़ख्मी हो जाए तो मामला इस पर नहीं रुकता, बल्कि ज़ख्मी होने वाले पर भारी जुर्माने वगैरह भी आयद किए जाते हैं। ऐसा ही एक और वाक़या तकरीबन 1 साल पहले मंजर आम पर आया था, जब कबायली इलाके ज़ैन से ताल्लुक़ रखने वाले जमाल बुज़दार नामी शख्स को काला काली के इल्ज़ाम पर जिरगा अरकान की मौजूदगी में गहरे पानी के तालाब में फेंक दिया गया था। भारतीय रियासत महाराष्ट्र के एक गांव में किसानों ने तेंदुओं के बढ़ते हमलों से बचने के लिए मुनफरिद हिफाजती तरीका इख्तियार कर लिया है। मुकामी अफराद अब खेतों में काम के दौरान अपनी गर्दन के गिर्द नोकीले और कांटों वाले पट्टे पहन रहे हैं ताकि तेंदुओं के अचानक हमले से महफूज रह सकें। गांव वालों का कहना है कि ये तरीका अब तक मौसर साबित हुआ है और इससे उनकी हिफाजत में इजाफा हुआ है। इंडिया के एक गांव में मजदूर तेंदुओं के हमले से बचने के लिए नोकीले पट्टे पहन रहे हैं। तेंदुआ किसी भी वक्त हम पर हमला कर सकता है।
खेतों में काम के दौरान हमला होने के इम्कानात ज्यादा होते हैं, इसीलिए हमें इस पट्टे की जरूरत है। गांव के लोगों ने धात से बने ये पट्टे अपने पालतू जानवरों से मुतासिर होकर बनाए हैं। आम्हाला हे कुत्र्यामुळे म्हणजे शक्कल वाटली, कुत्र्यामुळे ना आम्ही कुत्र्याचं हमें ये ख्याल कुत्ते के पट्टे को देखकर आया। त्यावेळेस आम्ही काठ्या वाजवत होतो तर आम्हाला वाटलं कुत्र नाहीच आता आमच्या हाताळायला यसच येत नाही, आम्ही कुत्र वाचूच शकत नाही। जब तेंदुए ने हमारे कुत्ते पर हमला किया तो वो इसलिए बच गया कि उसने वैसा ही पट्टा पहना हुआ था। मानाला पकडीन का हे करीन, हे खिळे असल्यामुळे आमच्या कुत्र्याच्या पट्टा असल्यामुळे कुत्रा आमचं वाचले। ये पट्टे तेंदुए को गले पर हमला करने से रोकने के लिए बनाए गए हैं। तेंदुओं के हमले में इजाफा हुआ है और सिर्फ 2025 में ही 3 अफराद हलाक हो चुके हैं। लेकिन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का कहना है कि धात से बने पट्टे पहनना लोगों के लिए खतरनाक हो सकता है, इसीलिए उन्होंने गांव वालों में प्लास्टिक के कांटेदार पट्टे तकसीम किए हैं जिनमें घंटियां नस्ब हैं। सामीन, कराची का इलाका लियारी, जो कभी गैंगवार, मनशियात और पुलिस ऑपरेशंस की वजह से शहर का बदनाम नो गो एरिया समझा जाता था, आज एक तब्दील शुदा मोहल्ला बन चुका है। इंडियन फिल्म धुरंधर के ट्रेलर ने लियारी के इस तारीख माजी को फिर याद दिलाया है, जब हंगामा आराई, बत्ताखोरी और मुकाबले यहाँ की पहचान थे। लेकिन वक्त के साथ साथ मुकामी लोगों की मुज़ाहमत, खेलों के फ़रोग़ और समाजी सरगर्मियों ने इस इलाके की शनाख्त बदल दी है। वही लियारी जो कभी खौफ की अलामत था, अब जिंदगी, खेल और अमन की अलामत बनता जा रहा है। मज़ीद तफसील कराची से रियाज सुहेल और मोहम्मद नबील की इस रिपोर्ट में। इन्हीं गलियों से लड़ते मरते हुए हम जवान, आओ बने हम आवाज़ के लियारी मेरा नाम, सिंधी सराय की बलोच या पठान, सबके अपने हुनर, सबके अपनी पहचान। बिल्कुल, जब मैंने धुरंधर का ट्रेलर देखा तो मुझे लगा कि मैं अपने बचपन में दोबारा से रिवाइव हो गया हूँ, क्योंकि जब ये सब चीज़ें मेरे सामने होती थी तो हम तो रोड्स पर क्रिकेट वगैरह खेल रहे होते थे। ज़ाहिर है मैं बैठ के जब उस पर सोच रही थी तो मुझे लगा कि क्या ये पाकिस्तान और इंडिया का आपस का कोई कलिश है जिसे लियारी वालों पे उतारा जा रहा है या कुछ और। 2016 से पहले ये ऐसा दौर था जिसको हम तारीख दौर कहते हैं ना, डार्क एज था वो। लियारी का जो पहले वाला रूप था वो वही दिखाया जाता है, उसी को हाईलाइट किया जाता है। लेकिन अभी लियारी में मैं कहती हूँ लोग आए देख के, लियारी में माशाल्लाह फुटबॉल है, गर्ल्स जो है बॉक्सिंग कर रही हैं। कराची का कदीम इलाका लियारी, जहाँ चंद साल पहले तक गैंगवार थी, गोलियों की गूंज थी, लोग अपने घरों तक महसूर थे और कई इलाके नो गो एरिया बन चुके थे। इन्हीं मनादिर को इंडियन मूवी धुरंधर में फिल्माया गया है। लेकिन क्या लियारी में आज भी यही सूरत हाल है? आइए ये जानने की कोशिश करते हैं। लियारी टाउन की आबादी तकरीबन 10 लाख है और ये कराची की गुंजान आबादियों में से एक है। यहाँ बलोच, सिंधी, उर्दू, पश्तून और पंजाबी कम्युनिटियों के लोग आबाद हैं। एक ऐसा इलाका जहाँ सकाफतें साथ रहती हैं। लियारी के बारे में कहा जाता है कि इसी ने कराची शहर को जन्म दिया, जहाँ इब्तदाई तौर पर मेहनत कश तबका आबाद हुआ। वक्त के साथ साथ सनती तरक्की और बंदरगाह करीब होने की वजह से यहाँ मजदूर, कारीगर और कारोबारी लोग बस गए और ये शहर का पहला वर्किंग क्लास इलाका बना और यूं ये सियासी सरगर्मियों और मजदूर तहरीकों का भी मरकज रहा। 21वीं सदी का आगाज इस इलाके के लिए नाखुशगवार रहा। पहले मंशियात फरोश, उसके बाद गैंगस्टर ग्रुप्स सरगर्म हुए। शहर में लसानी तफरीक और हंगामाराई ने भी अपना रंग दिखाया और लियारी की शनाख्त तब्दील होने लगी। मुख्तलिफ गैंग्स के दरमियान होने वाली लड़ाइयों की निशानियां आज भी दीवारों पर गोलियों के निशानात की सूरत में मौजूद हैं। कई घर आज भी वीरान हैं। शेर मोहम्मद ने गैंगवार में अपने प्यारों को खोया। उनके बेटे समेत 5 बॉक्सर को आधे घंटे में हलाक किया गया। तो वो आए एक एक को बुलाया, दस्तक दी कि बाहर कोई बंदा है, बुला रहे हैं, आपने क्या किया? तो भाई निकला तो उसको निकाल के उनके फिर गेट बाहर से बंद कर दिया उन्होंने। फिर उनको बस मारना शुरू कर दिया, डायरेक्ट फायर कर दिया उन्होंने। सारे खिलाड़ी थे, 5, कोई नेशनल खिलाड़ी था, कोई जो ना क्लब लेवल था, कोई
सिंध के हवाले से था। वजह क्या थी, वो ये चाह रहे थे कि आप हमसे मिलो, जो हम नहीं चाहते कि हम किसी के साथ इस मामले में इन्वॉल्व हों, क्योंकि हमारा शोबा बॉक्सिंग था, स्पोर्ट्स था। अब बच्चे बच्ची हमारे साथ हैं। बॉक्सिंग इनका जुनून है, जिसके लिए शेर मोहम्मद ने पहले लियारी छोड़ा और मवाज गोट पहुंचे और बाद में मवाज गोट छोड़कर फकीर कॉलोनी आए, जहां मुस्तकबिल के बॉक्सर्स तैयार करते हैं। लियारी की सूरत-ए-हाल में ड्रामाई तब्दीली उस वक्त पेश आई जब अप्रैल 2012 में यहाँ चील चौक के मकाम पर ऑपरेशन किया गया। इस ऑपरेशन के नतीजे में 8 रोज तक लोग घरों में महसूर रहे। 3000 से ज्यादा पुलिस और रेंजर्स एहलकारों ने इस ऑपरेशन में हिस्सा लिया। बाद में 2013 में मजमूई तौर पर शहर में ऑपरेशन शुरू किया गया, जिसके असरात लियारी पर भी मुरतब हुए। सड़कों, पीने के पानी, तालीम और सेहत के मसाइल के बावजूद यहाँ के नौजवानों ने हार नहीं मानी और एक नई शनाख्त की जदोजहद में लग गए। यहाँ मेहरदर कैफे भी इसकी एक मिसाल है, जिसका तस्वर पहले नहीं था। यानी एक आम जिंदगी जो रोजमर्रा की जिंदगी है उसमें रुकावट पैदा हो गई। हमारा तालीमी शोबा मुतासिर हुआ, हमारे रोज़गार का मसला हुआ, हमारे नौजवानों का मुस्तकबिल जो है वो तारीफ होता गया और फिर हमारी जो लियारी की शनाख्त थी वो बिगड़ गई। कराची में जो कुछ हुआ उसके असरात हमारे लियारी पर भी पहुँचे, लेकिन बहुत देर से पहुँचे। ऐसे इलाके कि यहाँ पर कलरी है, यहाँ पर शाबेग लेन है, कलरी से शाबेग लेन और शाबेग लेन से कलरी जाने में मसला हो रहा था, जो बिल्कुल ये करीब 2 गलियाँ हैं। हर गली में अपना एक हीरो बसा हुआ है कि बॉर्डर्स बने हुए हैं कि ये मेरा बॉर्डर है और ये आपका बॉर्डर है। और मैं समझती हूँ कि उस तशद्दुदाना जो माहौल है, वो जो ज़हनियत है, जिन्होंने फिर हमारे ज़हनों पे असर किया, वो अब तक निकलना आसान नहीं है। कहीं ना कहीं हमें महसूस होता था कि वो हमें, जो हमारी एसोसिएशन है, उसको गैंग वॉर के साथ कनेक्ट करते थे। तो हमें बहुत टाइम लगा उनको ये समझाने में कि who we are and how we were peaceful citizens, how we contributed towards peace. हाल ही में एक मूवी रिलीज होने वाली है, तो आपने यकीनन ये ट्रेलर देखा होगा, तो ये देखकर आपके जहन में क्या ख्यालात आते हैं? क्राइम कहाँ नहीं हुआ है दुनिया में, ठीक है। आप न्यूयॉर्क की हिस्ट्री उठा के देखे, वहाँ पे भी आपको गैंगस्टर्स नज़र आते हैं, ठीक है। इंडिया इटसेल्फ, गैंग ऑफ वासीपुर, उन्होंने बहुत सारी फिल्में बनाई हैं। तो पहले तो हम बड़े डिस्टर्ब थे, लेकिन फिर हमने सोचा कि यार मुझे लगता है कि हम इससे बहुत ज़्यादा आगे जा चुके हैं। अभी के जो बच्चे हैं, स्पेशली जो अर्ली चाइल्डहुड हैं, वो हमसे ज़रूर क्वेश्चन करेंगे, और जब हमसे वो क्वेश्चन करेंगे तो हमें अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना होगा, उन्हें बताना होगा कि हमारी शनाख्त क्या है, हमारी वो शनाख्त जो पॉजिटिव है। ये एक ऐसा दौर था जो कुछ अरसे के लिए आया, जिसने हमें पूरा का पूरा स्याह कर दिया, और उसी स्याह दौर के साथ हमें आगे धकेलने की कोशिश की गई। लेकिन यही के लोगों ने, यही के नौजवानों ने, यही के जो हमारे सीनियर सिटीजन्स थे, उन्होंने रेजिस्टेंस किया, और उस रेजिस्टेंस के नतीजे में आज लियारी को हम फिर से पूरा मन पाते हैं। धुरंधर मूवी में एक सीन इस मार्केट का भी है। शेरशाह मार्केट में 2010 में नामालूम अफराद ने हमला कर 12 से ज्यादा अफराद को हलाक किया था, जिनमें ज्यादातर अक्सरियत दुकानदारों की थी। इस हमले का इल्जाम भी लियारी के गैंगस्टर पर आयद किया गया था। उस रोज शहर में मजमूई तौर पर 50 से ज्यादा अफराद हलाक हुए थे, लेकिन आज शहर की सबसे बड़ी कबाड़ी मार्केट में कारोबारी सरगर्मियां मामूल के मुताबिक जारी हैं। लियारी को पाकिस्तान का ब्राजील कहा जाता है, जहां गैंगवार के जमाने में फुटबॉल मैच के दौरान धमाका हुआ और अकेडमीज गैर आबाद हो गईं, जो दोबारा से आबाद और फाल होना शुरू हो गई हैं। कोच अमाद फुटबॉल अकेडमी के इस मैदान में 2018 तक सिर्फ मट्टी और धूल थी, लेकिन अब सब्जा है और यहाँ लड़कियां भी फुटबॉल में आ गईं, जो आलमी सतह पर भी खेल रही हैं। दुआ फतून पहले अपनी टीम की कप्तान और अब कोच हैं।
अल्हम्दुलिल्लाह से अभी लियारी के गर्ल्स जो है बॉयज़ गर्ल्स आगे जा रहे हैं, प्रोमोट कर रहे हैं लियारी को। मैं कहती हूँ कि मतलब हर ज़्यादा लियारी के लोगों को हाईलाइट किया जाए, लेकिन हुकूमत जो है लियारी के लोगों को इतना हाईलाइट नहीं करती। हमारी टीम जो है सिंगापुर गई थी, इतना कास्ट सपोर्ट नहीं किया, मतलब बॉयज़ ने अपने खर्चे खुद उठाए थे, वहाँ पर गए थे। तो मैं कहती हूँ कि हुकूमत भी कुछ करें, लियारी के लोगों को जो है आगे पेश करें। लियारी के लोग सिर्फ गैंगस्टर नहीं है, लियारी के लोग जो है आगे बढ़ सकते हैं और हुकूमत उनको सपोर्ट करे, लेकिन हमारे पास हुकूमत जो है हमें सपोर्ट सही से नहीं करता। लियारी में रिवायती सुर वो साज पहले से मौजूद था, जो बनता भी था और बजाया भी जाता था, लेकिन इसकी आवाज़ गोलियों की गूंज में कहीं दब गई थी। तंग और गुंजाल गलियां जो कभी खौफ की अलामत समझी जाती थी, इन्हीं गलियों से मज़ाहमत ने जन्म ली। इन्हीं गलियों से लड़ते मरते हुए हम जवान, आओ बने हम आवाज़ के लियारी मेरा नाम, सिंधी सराय की बलोच या पठान, सबके अपने हुनर सबके अपनी पहचान, 1 to 5 अपलाइट कपड़ों की तरह बदलते, हाथ में साफी जानी सर्विस जरा कर दे, जमीनी हेलीकॉप्टर और सफेद हो लिबास, लियारी अंडरग्राउंड पर आर्ट की हो कदर, इधर मेहनत जारी चाहे जितना हो लंबा सफर, मौसीकी या फुटबॉल जुनून है रगों में, माइक पे फटेंगे या फिर गोलकीपर पे नजर, ब्यावत तो बेचारी चुशे ले आ रही है। अपना पहला गाना बहुत मतलब यंग एज में लिखा था, 16-17 कामरान आदम समो जैसे गुलकारों ने लियारी का दुख भी बताया तो उसकी खूबसूरती भी बयान की। लियारी को लोगों ने एक्सेप्ट करना तब से स्टार्ट किया जब से लियारी का टैलेंट आगे बढ़ा है, जैसे कि हमारी फुटबॉल टीम जो है वो इंटरनेशनल जाना शुरू हो गई। दूसरा ये हिप हॉप म्यूज़िक हमारा बहुत ऊपर है, क्योंकि पूरे कराची में हमें ऐसा म्यूज़िक देखने को नहीं मिलता है जिस तरह की वाइब यहाँ की है, स्ट्रीट वाइब है। तो लोग पसंद कर रहे हैं स्ट्रीट वाइब देखे, और लोग पहचानना चाह रहे हैं, देखना चाह रहे हैं कि लियारी है क्या आखिर। इन्हीं सब चीज़ों को देखकर लोग देख रहे हैं। जब भी लियारी में निकलते हैं, मुझे पर्सनली बहुत खुशी होती है जब मैं देखता हूँ कि लियारी का म्यूज़िक किसी रिक्शे के अंदर बज रहा है, या फिर मैं लियारी से बाहर जाके देखता हूँ कि लोग लियारी के गाने और लियारी की चीज़ें देख रहे हैं, लियारी का फुटबॉल इतना आगे है। तो अंदर से खुशी होती है कि जिस इलाके को कभी किसी ने इतना कभी देखा नहीं था और उसको अचानक से इसकी पहचान मिली। लियारी बदल चुका है, अब यहाँ ख्वाब बसते हैं। यहाँ के नौजवानों ने साबित किया है कि अपने इलाके को पहले अपनाया जाता है और उसके बाद शनाख्त तब्दील की जाती है। और सामीन, इसके साथ ही आज का सैरबीन अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे और मेरी पूरी टीम को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए, लेकिन इजाज़त लेने से कबल अब तक की खास खबरें।